Hello everyone. Good afternoon. Thanks for having me. Let me introduce myself. I am Hardik Panchal from Khodiar Infotech, pre-sales technical engineer. Today I'm showcase about SolidWorks 3D CAD and showcase their capabilities and overview related to industrial design. This is the serving industry of SolidWorks. SolidWorks providing their services and different industries, just like as aerospace, automotive, engineering, alternative manufacturing, construction, process and plant, life science and industrial equipment. This is the most common design and production stage. First we want to make a design, then after validate the design in simulate software, then after sustain make a technical manual in then after manage all those data, all those design data in SolidWorks PDM. This is the one SolidWorks 3D CAD video. SolidWorks provides dedicated tools and workflows that streamline the design and development of your products, from concepts through to reality. Thousands of companies worldwide rely on SolidWorks to get their products to market on time and within budget. All great designs start with a great idea, and sketching in SolidWorks is simple and straightforward. Even the most complex ideas are easy to realize with instant feedback and standard tools at your fingertips. Intelligence is baked into SolidWorks, making it simple to create winning designs in record time. Essential features such as holes are easily created using the Hole Wizard. An extensive library of hole types and configurations is available at your fingertips, keeping your design consistent with company standards. Rapid design changes can get you ahead of the game when it comes to the competition. SolidWorks enables you not only to modify design dimensions, but also drag and drop geometry with a minimum of effort. Customers demand great-looking products, and SolidWorks provides powerful surface design tools to handle even the most complex shapes. Today's products also require a variety of other CAD capabilities. Take sheet metal part design, for example. Walls, hems, and forms are created with the usual consistent workflow that SolidWorks users love. Standard features can be dragged from a design library, reducing rework. Meanwhile, SolidWorks automatically keeps the flat pattern up to date for rapid distribution to manufacturing. The design of structures like this is both common and challenging. Tools and workflows within SolidWorks let you define structural members from industry standards, taking care of joints, welding data, and additional hardware. An accurate is automatically created to keep scrap to an absolute minimum. SolidWorks takes care of even the most complex assemblies containing many thousands of parts. Components can be snapped together with a minimum of fuss while mimicking real-life behavior. Smart fasteners streamline the addition of hardware such as nuts, bolts, and washers. These automatically resize based on standards to fit the application. A great saver. Understand the performance of your ideas early in the design process can be crucial to a successful product launch. SolidWorks provides powerful tools to evaluate the design, giving you the confidence of getting to the market ahead of time and with maximum quality. Incorporating electrical design into your SolidWorks mechanical design is seamless. SolidWorks understands the logical connections and physical wire routings needed to provide early and accurate harness design compared to manual guesswork and iteration. Routing pipework conducting is both simple and powerful in SolidWorks. Standard fixtures and fittings provide a backbone for both solid and flexible pipes, giving you accurate routing and cut lengths to take to manufacture. When you are ready to document and detail your designs, SolidWorks makes things quick and simple. Starting with a standard drawing, 2D views are snapped into place from the palette. Automatic projection views are created, and sections are as simple as drawing a line to define the section plane.
Accurate dimensions can be taken straight from a 3D model or created with intuitive tools for additional placement and tolerancing. Assembly drawings contain accurate detail and prominent exploded views. Automatic bills of material and item balloons make understanding the design easy for manufacturing and suppliers. SolidWorks provides tools that help you develop great products faster. If you have a great idea for a design, SolidWorks provides everything you need to bring your designs to life in less time and at lower cost. This has been your first look at SolidWorks. For more information, contact your local reseller or explore our website. These are the SolidWorks 3D CAD different standard, professional, and premium. I will showcase both the difference. This is the today's agenda. Why SolidWorks 3D CAD, current industrial problem related to design, live demonstration of SolidWorks 3D CAD and their benefits. Current industrial problem, bill of material, weight calculate, production drawing, GA drawing, structure cut list, and last one is sheet metal development. Now let's start the live demonstration. Now the make first part. ये SolidWorks का पूरा UI है जहाँ पे आप पूरा पार्ट को मॉडलिंग कर सकते हैं, देन उसके बाद उसको असेंबली कर सकते हैं और देन लास्ट में उसको आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये तीनों पार्ट, ड्राफ्टिंग, असेंबली और पार्ट, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। स्मार्ट डायमेंशन आप उसको डायमेंशन मेजर कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो। ये पूरा रिलेशनशिप है। इसको हम रिवॉल्व करते हैं यहाँ से। देन आफ्टर हमको यहाँ पे उसका चैम्फर वो सब देना है, तो यहाँ पे फिलेट और चैम्फर है, उसके साइज लिख सकते हो। देन आफ्टर लास्ट वन इज फिलेट। अभी इसका पूरा हमको वेट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे पूरा मटेरियल लाइब्रेरी दिया हुआ है SolidWorks ने। ये पूरा प्री डिफाइंड SolidWorks मटेरियल लाइब्रेरी है। आप कंपनी का स्टैंडर्ड मटेरियल भी जो फॉर एग्जांपल बाहर मिलता है, EN8, EN9, EN11 मटेरियल जो स्पेसिफिक गियर बॉक्स के अंदर यूज होता है, वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज करके बना सकते हो। ये पूरा मटेरियल है वो SolidWorks ने प्री डिफाइंड दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक डेमो पर्पस के लिए एक MS मटेरियल बनाया हुआ है। यहाँ पे जब आप मटेरियल कोई भी बनाते हो नया, तो पूरी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज रहती है यहाँ पे उसको आपको फुलफिल करना है। Then you can direct calculate weight। ये पूरा केजी में दिखा रहा है आपको। फॉर एग्जांपल उसको ग्राम में चाहिए तो आप ऑप्शन में जाके कस्टम ये पूरा ग्राम कर सकते हो। यहाँ पे ये पूरा ग्राम। देन उसके बाद हम यहाँ पे उसका 2D ड्राफ्टिंग बना दे।
न्यू फाइल, मेक ए ड्राफ्टिंग, सेव, स्टॉप, D50। ये पूरा ड्राइंग टेम्पलेट है, फॉर डेमो पर्पस के लिए मैंने बनाया हुआ है। आप कंपनी का स्टैंडर्ड भी उसको बना सकते हो। कंपनी का लोगो, टेक्स्ट साइट क्या होनी चाहिए, डायमेंशन स्टाइल क्या होनी चाहिए, उसके भी आप पे। यहाँ से आप उसको सेक्शन व्यू दे सकते हैं। देन लास्ट वन, आप यहाँ पे उसका डायमेंशन मेजर कर सकते हो डायरेक्टली। ये डायमेंशन ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ये इसकी फैसिलिटी है। यहाँ पे हम चैम्फर दे सकते हैं। देन लास्ट वन, यहाँ पे रेडियस मेजर कर सकते हैं। लास्ट वन, सेंटर लाइन। उसके बाद उसका पूरा हम आइसोमेट्रिक व्यू डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप उसका स्केल चेंज कर सकते हो कस्टम में जाके। ये पूरा पार्ट हमने बनाया हुआ है, वाल की सीट है। अभी हम उसको असेंबली करते हैं। सेव, ये पूरा असेंबली का यूआई है। यहाँ से आप कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हो, ब्राउज करके आप यहाँ पे कंपोनेंट इंसर्ट कर सकते हो। विद इन सिंगल क्लिक आप उसको सेक्शन व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो पूरी असेंबली को। लास्ट में उसको हम फिक्स करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे उसका जो बॉनेट है और यहाँ पे हमको उसका स्टड और उसका जो फास्टनर्स है बोल्ट, उसको असेंबल करना है। स्टैंडर्ड के अंदर हम उसको ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, और फर्स्ट लेवल ये जो असेंबली है वो कर सकते हैं। देन आफ्टर आते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के अंदर आपको ये पूरा डिजाइन लाइब्रेरी दिया गया है। ये आपको कंपनी के जो कस्टम जो बॉट आउट आइटम रहती है, बेरिंग से, फास्टनर से, स्टैंडर्ड सर्क्लिप्स है, वो सब आप यहाँ पे रख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको पूरा टूल बॉक्स मिलता है जो पूरा प्री डिफाइन है। मैट्रिक्स, बोल्ट, डिफरेंट टाइप्स के बोल्ट्स है, ओरिंग, देन आफ्टर ए सर्क्लिप एक्सटर्नल और इंटरनल, बेरिंग दिया गया हुआ है, रोलर, बॉल बेरिंग। मैंने यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए एक कस्टम लाइब्रेरी बना हुआ है वाल का, जहाँ पे उसकी स्टड की, यहाँ देखो, यहाँ से मैं स्टड उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को पूरी हाइट दिखा रहा है कि कौन सी हाइट आपको लेना है। 16, ओके, मैट, ये
इसको हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमको यहाँ पे उसके ऊपर नट M16 का नट लगाना है, ये हेक्स नट। उसके बाद उसको हम सर्कुलर पैटर्न करते हैं। ये पूरा असेंबल हो गया पूरा वाल का। देन आफ्टर इसका हमको बिल ऑफ मटेरियल चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल के लिए मेक ड्राइंग A3, ओके। व्यू, यहाँ पे उसका स्केल में इंक्रीज कर देता हूँ 1.3.5 के। देन सेक्शन, ओके। अलाइनमेंट यहाँ पे क्लिक करना, ओके। इसका पूरा हमको बिल ऑफ मटेरियल चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल के लिए यहाँ पे टेबल्स के अंदर बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल, सिलेक्ट। ये पूरा जो असेंबली के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो पूरे कंपोनेंट का बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे है। अभी उसको हमको बलूनिंग करना है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे। ऑटो बलूनिंग है, दूसरा ऑप्शन है आप उसको मैन्युअली भी बलून कर सकते हो। ये पूरा बिल ऑफ मटेरियल, पार्ट और ड्राफ्टिंग ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे स्टेम को बलूनिंग करता हूँ तो 5 नंबर स्टेम। ओके, आप यहाँ पे उसका डायमेंशन भी दे सकते हो विथ टॉलरेंस। उसके टॉलरेंस यहाँ पे हम टॉलरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ये पूरा बिल ऑफ मटेरियल आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है। some industries are using ERP software which directly connected with the Excel. So यहाँ पे हम उसको पूरा एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक, सेव एज, डेस्कटॉप, एक्सेल, BOM, सेव। ये पूरा बिल ऑफ मटेरियल आ गया। उसके बाद आता है हमने ये वाल तो उसका ड्राइंग ये सब बना दिया। देन ये जाता है पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे उसको लाइव असेंबल होता है। तो उसके लिए हमको उसका पूरा एनिमेट चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बोल्ट आ रहा है या स्टैंप आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। एक्सप्लोर व्यू है यहाँ पे, ये एक्सप्लोर व्यू है, आप यहाँ से उसको कर सकते हो पूरा। मैंने यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए एक बनाया हुआ है, आप उसको एनिमेट भी कर सकते हो।
आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या अदर वेंडर हो जहाँ पे आप आपका ये कंपोनेंट बाहर कोई दूसरी कंपनी में बन रहा है, उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। देन सेकंड वन आता है हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हम कंपनीज में सी चैनल या बॉक्स सेक्शन, पाइप वो सब यूज कर रहे हैं, तो उसका एक सेक्शन स्ट्रक्चर जैसा रहता है। मैंने डेमो के लिए एक वेल्डमेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी इंडस्ट्री का करंट प्रॉब्लम कैसा रहता है कि हमारा इसका स्ट्रक्चर का पूरा टोटल ऑफ लेंथ नहीं मिलता, उसको मैन्युअली मेजर करवाना पड़ता है, देन उसके बाद उसको स्टोर में जाके कट करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की एक फैसिलिटी ऐसी है कि आपको डायरेक्ट उसका कट लिस्ट मिलता है। मेक ड्राइंग। देन सेकंड वन उसका साइड व्यू, यहाँ पे उसका टॉप व्यू। आप उसको आउटर डायमेंशन दे सकते हैं यहाँ से आप उसको। अभी जैसे हमको पूरी इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैन्युअली हम जब ऑटोकैड या कोई भी 2D सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं या कोई मैन्युअली वर्क कर रहे हैं प्रोडक्शन फ्लोर पे जाके, तो यहाँ से हम पूरा उसको मेजर करते हैं, तो उसके बाद उसके एंगल वो सब मेजर करना पड़ता है और उसके बाद उसको कट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के अंदर एक पूरा कट लिस्ट दिया हुआ है, वेल्डमेट कट लिस्ट। आप उसको सिलेक्ट करो, कट लिस्ट का बॉम स्टैंडर्ड, ओके। ये पूरा कट लिस्ट यहाँ पे है। ये जो पूरा आइटम नंबर 1, अब उसको मैंने जैसे पहले बिल ऑफ मटेरियल में बताया, अब डायरेक्टली उसको बलून कर सकते हो, उसको मैन्युअली भी कर सकते हो। ये जो बिल ऑफ मटेरियल का टेबल है या कोई भी कटलिस्ट का टेबल है, ये टेबल आप कंपनी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसके बिहाफ पे पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे उसका मटेरियल ऐड करना है, राइट, तो इंसर्ट, राइट, कस्टम, यहाँ पे उसका मटेरियल, ये पूरा मटेरियल आ गया। आप पूरा ठीक है, यहाँ पे पूरा कस्टमाइज भी उसको आप कर सकते हो। और ये पूरा टेबल आप उसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है ना, यू कैन सी, यहाँ पे मैंने पूरा बनाया हुआ है। उसका एंगल क्या है, जन उसकी हाइट क्या है, कहाँ से उसको कट करना है पूरा, उसका ये पूरा कटलिस्ट टेबल है। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर यूज टू है। ऑलमोस्ट 90 एंड 95% वर्क आपका वर्क की जो प्रोडक्टिविटी जो टाइम है वो पूरा 95% डिक्रीज हो जाएगी। देन लास्ट वन आता है उसका शीट मेटल का डेवलपमेंट। ये पूरा जो पैनल रहता है, इलेक्ट्रिक पैनल का एक बॉक्स है, इसका मैंने डेवलपमेंट किया हुआ है एज फॉर डेमो पर्पस के लिए। कैसा नया बंदा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। So 170 by 125 शीट मेटल। यहाँ पे आप कंपनी का स्टैंडर्ड जो गेज टेबल है वो भी आप यूज कर सकते हो, राइट। और गेज टेबल आपको नहीं यूज करना है तो आप उसको बन के यहाँ पे आप मैन्युअली भी उसको थिकनेस डाल सकते हो। जैसे 14 mm का गेज का रहता है तो उसका 2 mm थिकनेस रहता है। गेज प्लान, यहाँ से उसकी हाइट,
भाई ये पूरी सीट है, हम उसका डेवलपमेंट चाहिए और पूरा डेवलपमेंट हमको चाहिए ऑटोकेड के अंदर। तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको फ्लैटन कमांड से पूरा डेवलप कर सकते हो। ये पूरी बॉर्डर है, हमारी शीट की पूरी बॉर्डर है। डेमो के लिए मैंने ये बनाया हुआ रखा है यहाँ पे। ये जो फॉर्म टूल वो सब दिया हुआ है, वो कंपनी के हिसाब से आप उसको स्टैंडर्ड भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पूरा फॉर्म टूल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जब आप सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल करते हो तो कंपनी के बिहाफ पे आप पूरा उसको स्टैंडर्ड बना सकते हो। अभी हमको चाहिए उसका पूरा डेवलपमेंट। ड्राइंग, मकर ड्राइंग, 3D, इसकी फ्लैटन पैटर्न, ये उसका पूरा डेवलपमेंट आ गया। कहाँ से आपको बैंड करना है, कितनी रेडियस है उसके साथ। उसके बाद एनोटेशन, फॉर एग्जांपल आपको उसका पूरा बैंड टेबल चाहिए, तो आप बैंड टेबल भी यहाँ से आप उसको कर सकते हो। या पूरा ये पूरा बैंड टेबल है, ए अप डाउन, 90 एंगल, कितनी रेडियस है वो। तो सीट मेटल इंडस्ट्री में अभी ये सॉफ्टवेयर यूज टू है। जैसे कोई कंपनी इलेक्ट्रिक पैनल बनाती है या कोई मशीन का कवरिंग रहता है, जैसे एक्सट्रूडर मशीन के ऊपर जो पूरा कवरिंग रहता है वो भी पॉसिबल है। तो सॉलिडवर्क्स का इतना हमारी जो इंडस्ट्रियल है उसके प्रॉब्लम इतना हेल्पफुल रह सकता है। This is the benefits of SolidWorks 3D CAD: less expensive than wind tunnel testing and prototyping, faster leading time, able to investigate several option, and require less effort. ये पूरा सॉलिडवर्क्स का 3D CAD का कॉमन फीचर है जो पूरा रिलेटेड है पूरा मैकेनिकल इंडस्ट्री के बिहाफ पे। 2D डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम उसका 3D पार्ट मॉडलिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जो होल विजार्ड है, ये जो पूरा होल विजार्ड है, ये पूरा होल विजार्ड जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ये होल विजार्ड पूरा प्री डिफाइंड है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होल है जो बाहर आपको मिलते हैं, उसके जो बोल्ट मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल एलन है, हैवी हेक्स है, हैवी हेक्स नट बोल्ट है, तो स्क्रू है। ये थ्रेड का पूरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। मैट्रिक्स, जीबी, डीन, आपको उसको मैट्रिक्स में आपको जर्मन स्टैंडर्ड भी यूज करना हो तो आप डीन यूज कर सकते हो। जीबी है, जीबी में और इंडिया स्टैंडर्ड आईएसओ में भी आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे जीबी, यहाँ पे आपका टाइप है बॉटिंग, टैपिंग, स्ट्रेट या टैप होल। यहाँ पे पूरा उसका साइज है नट बोल्ट का, कितने का आपको ड्रिल करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ्लैंज ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसका पूरा यूज। ये पूरा फ्लैंज यहाँ पे उसका डायमीटर है 250, देन उसकी थिकनेस है 22 mm, देन लास्ट वन बोथ साइड इज 1 mm रेडियस। यहाँ पे उसको हमको यहाँ पे पूरा मटेरियल डिफाइन कर देता हूँ एमएस। देन होल विजार्ड, होल विजार्ड यहाँ पे हम उसका मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड ले लेते हैं M16, उसके डीप या थ्रू आउट है तो पूरा थ्रू ऑल। पोजीशन, आप यहाँ पे पूरा उसकी पोजीशन डाल सकते हो। ये पीसीडी है, पीसीडी आप मेजर कर लो। देन विथ थ्रेड के साथ आपको डिस्प्ले कर रहा है पूरा। उसको हमको 12 चाहिए नंबर ऑफ होल क्वांटिटी।
नंबर ऑफ क्वांटिटी 12। अभी उसको हम ड्राफ्टिंग करते हैं। मेक न्यू A3 टॉप व्यू, custom कस्टम, देन लास्ट वन इज, उसको शेडेड हटा देते हैं। हाँ, अभी हमको उसका जो होल का कटआउट है उसका डायमेंशन मेजर करना है। तो यहाँ पे पूरा दिया होगा सॉलिडवर्क्स से होल कॉल आउट, क्लिक, देन कोई भी होल पे क्लिक करो, आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई होगा। 40.5 mm का ड्रिल से आप पूरा उसको थ्रू कर सकते हो, देन टैपिंग कर सकते हो M16 का। ये पूरा बेनिफिट्स है सॉफ्टवेयर का। उसका आप ओडी, देन उसकी पीसीडी, उसकी पीसीडी आप मेजर कर सकते हो यहाँ पे। नहीं, वेट 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 वेट, स्केच सर्कल, उसकी पूरी पीसीडी मेजर कर सकते हो। इस तरह ये होल कटआउट वर्क करता है। देन सेकंड वन है उसका वेल्डमेट, जो मैंने आपको दिखाया, शीट मेटल, मोल्ड टूल, एनोटेशन। ये पूरा एनोटेशन है यहाँ पे, आप उसकी पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हो। देन असेंबली डिजाइन, फीचर रिकॉग्नाइज, ये जो पूरा फीचर उसको रिकॉग्नाइज करता है, ये पूरा फीचर ट्री। बिल ऑफ मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया वो पूरा एक्सेल में कन्वर्ट करके। कोलैबोरेशन टूल, कंपोनेंट लाइब्रेरी, ये पूरा कंपोनेंट लाइब्रेरी। डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप इसको स्टेप फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सेव एज। some industries are using CNC or VMC, or CNC VMC supported file is step file, IGS file. So you can directly convert it into step, IGS or parasolid file. IGS file, then step file and parasolid file. तो यहाँ पे step file में हम convert करते हैं flange save। ये डेटा पूरे एक्सपोर्ट हो गया। बिना ओपन करके मैं आपको स्टेप फाइल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टेप फाइल, आईजीएस फाइल, कोई भी फाइल आप ऐसे उसको इंपोर्ट करके ओपन कर सकते हो सॉलिडवर्क्स में। उसका मेजरमेंट भी कर सकते हो। उसकी लेंथ, देन उसके बाद आप यहाँ पे उसका मटेरियल अप्लाई करके उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो। ये ग्राम में, आप उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर 3D प्रिंटिंग के लिए भी आप उसको सेव एज करवा सकते हो। देन लास्ट वन है ई ड्राइंग। ई ड्राइंग टूल ऐसा है जैसे कोई कंपनी, जैसे आपने कोई एक फॉर एग्जांपल ये वाल बनाया हुआ है, आपने ये वाल बनाया हुआ है, आपको ये वाल को कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ के सामने रिप्रेजेंट करना है फॉर मार्केटिंग पर्पस के लिए या फॉर ऑर्डर के लिए। ये जो पूरा वाल है मैं उसको ई ड्राइंग में कन्वर्ट करता हूँ। ई ड्राइंग, ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको एंड्रॉइड मोबाइल में यूज कर सकते हो, एप्पल आईफोन में भी यूज कर सकते हो, आईपैड में भी यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वन टाइप हो ये ऑटोकेड, ये सॉलिडवर्क्स का जो फाइल है उसका व्यूअर है। इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, डेस्कटॉप,
ये पूरा वाल यहाँ पे, जैसे आप उसको एक्सट्रूड करना है तो वो भी पॉसिबल है। देन उसको आप एनिमेट भी करवा सकते हो। ये टूल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन इफ आपको कोई अदर जो हमारी प्रोडक्ट है, फ्लो सिमुलेशन है या सिमुलेशन है या 3D कैड है, तो उसको लाइव डेमो देखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के वहां पे ऑफलाइन डेमो के लिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस है, आप पूरी इंक्वायरी यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो।